What a great joy it is to worship the Lord together in this morning. और कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर की आराधना एक बार फिर से हम लोग आज की सुबह कर सके। God was so faithful to us for the last 1 year. और पिछले एक वर्ष से परमेश्वर हमारे प्रति कितना विश्वास योग्य रहे। And this will be the last Sunday of this year that we coming together and worshiping the Lord in this time. और इस वर्ष का ये आखिरी रविवार है जब एक साथ मिलके हम लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं इस साल में। Let us remember God's faithfulness and let us together worship our Lord and prepare our hearts to celebrate God's faithfulness in our life. और आइए परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में हम याद रखें और एक बार फिर से अब उसको याद करके धन्यवाद करें उसकी विश्वास योग्यता के लिए हमारे जीवन में। And I believe you all have a wonderful time of Christmas and sharing the gospel, sharing the love of God to the people, those who God has given to us. और मेरी आशा है कि आपका एक बहुत ही अच्छा समय क्रिसमस का बीता और आप लोग ने परमेश्वर के प्रेम को, सुसमाचार को उन लोगों से बांटा, परमेश्वर के प्रेम को बांटा जिन लोग आपको परमेश्वर ने दिए थे। Let us together close our eyes and look to the Lord in prayer. और आइए अपनी आंखों को एक साथ बंद करके हम प्रार्थना में जाएं। Our dear gracious Heavenly Father, we want to thank you for your faithfulness for the last 1 year and you were so good to us. परमेश्वर तेरी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी दया और करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। Hallelujah. Thank you Lord for your protection. Thank you Lord, you being a Jehovah Jireh for us. You were Ebenezer to us. You were Jehovah Rapha to us, Lord, and you were Emmanuel to us. Thank you Lord for your faithfulness. Lord, we have reached to the last Sunday of this year and Lord, we are just looking back and we are remembering what God you have done for our lives. प्रभु हम धन्यवाद करते याद करते हैं प्रभु पिछले 11 महीने प्रभु हर एक दिन तूने हमें संभाल कर परमेश्वर हालेलुया अब तक लेकर आए हैं, अब तक यहोवा ने सहायता किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के सुंदर समय इस सुबह प्रभु जब हम अपने आप को आराधना के लिए तैयार करते हैं, पवित्र आत्मा ये हमारी प्रार्थना है। Lord, this is our prayer that may the Holy Spirit guide us and lead us and Lord help us to enjoy your presence wherever we are प्रभु जहां पर भी हो, हमारे कमरों में, हमारे घरों में प्रभु हालेलुया आपकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए हम सबको तू सहायता कर। Thank you Lord for your presence. You are going to move in our midst Lord in this morning. You are in our midst Lord. You are in our lives. We are just remembering your faithfulness and goodness Lord. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरी दया और करुणा को याद करते हुए परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में आए हैं प्रभु। हम थोड़ी देर आपको आराधना के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, preparing ourselves to worship you Lord. Be with us Lord and guide us Lord to this entire service from the beginning till the end. May the Holy Spirit guide and lead us Lord. Thank you Lord for your faithfulness. We give all glory and honor to you Father. In Jesus most precious name we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. Let us prepare our hearts to worship our living God. और आइए अपने हृदय को तैयार करें कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर की आराधना करें। Father God, we thank you for this wonderful time that you have given us to come in your presence once again, oh God. Thank you for giving us this wonderful opportunity to lift your name and honor your name, oh Father. Lord, we give you all glory and honor, oh Father. We surrender our lives in your presence this morning. Father God, we need your grace. Show us your glory this morning, oh Father God. Holy Spirit, have your way in our houses in this service at this very time when you have joined and we are lifting your name high, oh Father God. We give you all glory and honor in Jesus' precious name we ask and pray. Hallelujah, hallelujah. We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Those who have joined us online, हमारे साथ ऑनलाइन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप जहां कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप अपने जगहों में खड़े होकर परमेश्वर को आदर देते हुए उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। धन्यवादित हृदय के साथ परमेश्वर इस पूरे साल भर हमारे साथ रहा। God was with us. He was faithful with us through this year. And he was truthful to us and he is still faithful to us. Hallelujah. Oh, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सब मिलके गाएंगे। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ। हाँ परमेश्वर कहता तुझे बस
शुक्रिया। फिर से क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या दे, oh let the praise arise, we give you glory, कहता तुझे बस शुक्रिया। सारे दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया। अपने हृदय के गहराई से हाथों को उठाकर अपने ओठों से स्तुति परमेश्वर के लिए। परमेश्वर तेरी नाम को आदर मिले, तेरे नाम को महिमा मिले। सब कुछ तूने रचाया। बाबा वो शंतरे क्या दे सकता हूँ, हाँ परमेश्वर क्या ला सकता हूँ। धन्यवाद हृदय के साथ दंडवत करते हैं परमेश्वर तेरे चरणों में। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को हम स्वागत करते हैं हमारे जगहों पर। परमेश्वर तेरी महिमा को दिखाओ, ओ तेरी महिमा की बादल हमारे घरों को। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिबाला शंतरे मेरे अंतरे। कुछ क्षणों अपने आवाजों को उठाकर अन्य भाषाओं में आत्मा में होकर उस परमेश्वर के उपस्थिति को स्वागत करते हुए, oh welcoming the presence of the Holy Spirit in your places, acknowledging His mighty works in your life. Father, we welcome you this morning. We thank you from the bottom of our hearts, oh God. Hallelujah. Rabala shantara barabala riyala nahantore. सारी दुनिया तेरी है, हृदय के गहराई से सब कुछ तूने, ओ मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा दिया। क्या दे सकता, दोनों हाथों को उठाकर क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ हालेलुया। अब जहां कहीं मैं ताली बजा के उस परमेश्वर के लिए और जोर से अपने घरों में हालेलुया, हालेलुया जोर से चिल्लाकर आप हालेलुया बोले। आप जैसे हालेलुया चिल्लाते हैं, आपके पड़ोसी समझना चाहिए कि हाँ आपके घर में परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। I request you to clap your hands from wherever you have joined us, or from the bottom of your hearts, or with a thanksgiving heart, acknowledging that God, your light has broke through my night and you have given me exceeding joy. Hallelujah. Your light broke through my night, restored exceeding joy. Your grace fell like a rain and made this desert live. Your light broke through my night, restored exceeding joy. Your light fell like a rain and made this desert rain. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrows into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrows into joy. Your hand lifted me up. Yes, your hand lifted me up. Come on, clap your hands and sing. Hallelujah.
जहां कहीं भी हैं, अब अपने जगहों में खड़े होकर थाली बजाकर Your praise rose in my heart, made this valley sing. Your hand lifted me up. I stand on higher ground. Oh, your praise rose in my heart and made this desert sing. You have turned. Now stay with you, उस परमेश्वर के लिए. You have turned my sorrows into joy. Oh, you have turned. You have turned my mourning into dancing. You turned my mourning into dancing. You have turned my sorrows into joy. Oh, come on, lift your hands and sing. This is how we jump and shout and sing. This is how we overcome through the situations, overcome through the troubles, overcome through the enemies. This is how we overcome. Yes, Javan. हमें से जवान होते हैं, हमें से जवान होते हैं, खुशी के साथ हमें से जवान होते हैं. ओ यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए प्रार्थना करें, आराधना करें. वो अच्छा है कितना आत्मा में होकर अपने हृदय के गहराई से उस परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद होते हुए हालेलुया. परमेश्वर तेरी नाम की स्तुति हो. छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा परमेश्वर की उपस्थिति में, छुटकारा पाए हमेशा. आराधना में है छुटकारा. Yes Lord. आराधना में है चंगाई. बजाकर yes. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई. शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु. शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. हालेलुया. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा, तालियों के साथ छुटकारा पाए हमेशा. छुटकारा पाए हमेशा. हालेलुया. छुटकारा पाए हमेशा. मांगोगे तुम्हें मिलेगा, विश्वास के साथ ढूंढोगे तुम पाओगे. परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया पूरे विश्वास के साथ, पूरे हृदय के साथ जब मांगेंगे वो जरूर देगा. कटकटाओ खोलेगा स्वर्ग के आशीष से, पाओ तुम उससे अभी. कटकटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उससे अभी. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. हालेलुया. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा. हालेलुया. छुटकारा पाए हमेशा. छुटकारा पाए हमेशा. हालेलुया. छुटकारा पाए हमेशा. हालेलुया. अपने दोनों हाथों को उठा. आइए अब हम मिलके भजन संहिता 26 को पढ़ें, और जो भी अनुवाद आपके पास है उसमें ऊंची आवाज से आप पढ़ सकते हैं. Let us read Psalm 26 together. Vindicate me, O Lord, for I have walked in my integrity. I have also trusted in the Lord. I shall not slip. Examine me, O Lord, and prove me. Try my mind and my heart, for your loving kindness is before my eyes. I have walked in your truth. I have not sat with idolaters mortals, nor will I go with the hypocrites. I have hated the assembly of evildoers, and will not sit with the wicked. I will wash my hands in innocence.
So I will go about your altar, O Lord, that I may proclaim with the voice of thanksgiving and tell of all your wonderful works. Lord, I have loved the habitation of your house and the place where your glory dwells. Do not gather my soul with the sinners, nor my life with the bloodthirsty man, in whose hands is a sinister scheme, and whose right hand is full of bribes. But as for me, I will walk in my integrity. Redeem me and be merciful to me. My foot stands in an even place. In the congregation, I will bless the Lord. And this is a beautiful psalm where the psalmist begins with asking God to examine him, to examine his heart, to see his heart. और ये बहुत ही सुंदर भजन है जहाँ पे वो भजन लिखने वाला परमेश्वर से कहता है कि उसको जांच ले, उसको परख ले, उसके दिल को देख ले कि उसके मन में क्या बातें हैं। इतना ज्यादा वो दृढ़ था अपने चाल चलन पे। He was so sure about his walk. He knew that there is no fault in him. My brother and sister, let me encourage you today. This is something which we can learn from the psalmist. क्या हम में भी ये हियाव है, ये दिलेरी है, हमें क्या ये विश्वास है कि हाँ, यदि परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे दिलों को परखे, उसको जांचे, तो उसको हमारे दिलों में कोई कमी नहीं मिलेगी। क्या इस बात को हम विश्वास से परमेश्वर से कह सकते हैं कि जांच ले परमेश्वर मेरे हृदय को, उसमें कोई कमी नहीं मिलेगी। और ये बहुत ही हियाव के साथ कहता है, क्योंकि मैं खराई से चला, for I have walked in integrity. Dear people, are we walking in integrity? Are we walking in the way we supposed to walk? जिस तरीके से हमें चलना चाहिए, वो तरीका जो परमेश्वर को भाने वाला तरीका हो, the way our walk that is pleasing to God. क्या हम परमेश्वर को भाने वाले तरीके से चल रहे हैं? उसके बाद फिर से वो कहता है, Examine me, O Lord, and prove me, and try my mind and my heart. मेरे दिल को जांच ले, मुझे परख ले, और ये बात साबित हो जाएगी। हम भी क्यों ना परमेश्वर से इस बात को बोले कि परमेश्वर, मेरे जीवन को परख लीजिए, मेरे मन को परख लीजिए, मेरे हृदय को परख लीजिए। हमारा जीवन इस रीति से होना चाहिए कि हम बिना डरे, बिना संकोच किए परमेश्वर से कह सके, परमेश्वर मुझे परख ले। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं, so we can see the confidence of the psalmist. He was so confident, as it says, and I have walked in your truth. और वो हियाव के साथ बोलता है, मैं तेरे सच्चाई में चला। Are we walking in the truth? In the truth of God? क्या हम परमेश्वर के सत्य पे चल रहे हैं? क्या उसके वचन के अनुसार हम चल रहे हैं? जिस प्रकार से ये भजन लिखने वाला इतने हियाव के साथ कह सकता है, क्या हम भी उतने हियाव के साथ कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर, हम तेरे वचन पे चल रहे हैं? ये एक ऐसी बात है जो हमें सीखने की जरूरत है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो वो कहता है कि मैं आइडोलेटर्स के साथ नहीं, मैं मूर्ति पूजकों के साथ नहीं बैठा, मैं ढोंगियों के साथ नहीं रहा, मैं दुष्ट कार्य करने वालों के साथ नहीं रहा, मैं दुष्टों के साथ नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? वो रह सकता था। Any one of us could be with idolaters, with evil doers, with the wicked, but he was not with them because he was aware of God's presence with him. वो परमेश्वर की उपस्थिति जो उसके साथ, उसके करीब में थी, उससे उसको जानता था, उसको पहचानता था। और केवल इस वजह से परमेश्वर की उपस्थिति के लिए उसने इन लोगों की संगति को नहीं किया, ताकि परमेश्वर की जो उपस्थिति उसके साथ है वो उससे दूर ना होने पाए। उसके बाद छठी आयत में हम देखते हैं, वो कहता है, I will wash my hands in innocence. मैं अपने हाथ को मासूमियत में धोऊंगा। इनोसेंस, एक इनोसेंस क्या होता है? एक इनोसेंस, एक बच्चों को अक्सर कहा जाता है इनोसेंट है, मासूम है। What do we mean by that? जो इनोसेंट बच्चा होता है उसे नहीं पता होता है कि गलती क्या होती है, उसे नहीं पता होता है दुष्टता के काम क्या होते हैं, उसे नहीं पता होता है कि चालाकी क्या होती है। उसी प्रकार से हमें भी इनोसेंटली परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। और इसी वजह से परमेश्वर ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। इसका मतलब हमें बच्चों से सीखना है कि हमें कैसे इनोसेंट बनना, हमें कैसे मासूमियत में चलना है। ये जरूरी है हमारे मसीह जीवन के लिए,
that we walk in innocence, कि हम मासूमियत में चले, कोई दुष्टता, कोई छल या कोई कपट हम में ना हो, बच्चों के समान, ताकि हम भी परमेश्वर के स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाएं और पवित्रता में बने रहने पाएं। उसके बाद ही वो कहता है, सो आई विल गो अबाउट योर ऑल्टर ओ लॉर्ड। परमेश्वर की वेदी मतलब जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति हो। वचन बताता है कि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। Without holiness no one can see the Lord, and if you want to see the God, if you want to see God, if you want to be in His presence, of course we need to be holy. हमें पवित्र बनना होगा, हम पवित्रता के साथ उसकी वेदी पर जाएं, क्योंकि हम जानते हैं वचन बताता है यदि हम भेंट चढ़ाने के लिए या बलिदान चढ़ाने के लिए उसकी वेदी पर जाते हैं और यदि हमारे भाई के विरुद्ध हम में कुछ है तो अपने हम वरदान को, अपनी भेंट को वहीं छोड़ के पहले अपने भाई से जाके मेल मिलाप करें, उसके बाद अपनी भेंट को हम चढ़ाएं। In the same way we have to be walking in holiness, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके, so that we can enter in His presence, and we will be able to enter in His presence when we are holy, when we are walking in holiness, because our God is holy and He expects us to be holy, because your word of God says be holy because your God is holy. उसके बाद जब हम आगे देखते हैं, उसके बाद वो कहता है with a voice of thanksgiving, हम धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाएं। हम आजकल उसकी उपस्थिति में जाते हैं, हम चाहते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहे, हमारे करीबी में वो रहे, लेकिन हम कितना उसका धन्यवाद करते हैं? Are we thankful for His presence in our lives? Of course we are praising Him, we are asking so many things. We ask for anointing, we ask for tongues, we ask for spiritual gifts. But are we thanking Him for His presence? क्या हम धन्यवाद देते हैं? Are we thanking Him for everything He has done for us? Are we thanking Him for His promises? क्या हम उसके वायदों के लिए उसका धन्यवाद करते हैं? He promised that He will be with us till the end of the ages. Are we thankful for that promise? क्या हम इस धन्यवाद करते हैं उसके उस वायदे के लिए? We need to be. और उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए हमें उसकी वेदी के करीब जाना है, जो कि उसकी उपस्थिति है, उसकी उपस्थिति में जाना है कि हम उसको धन्यवाद कर सके। और उसके बाद 8वीं आयत में वो कहता है, I have loved the habitation of your house. यहाँ पे तो शायद एक मटीरियलिस्टिक या फिर मैं कह सकता हूँ एक भौतिक एक भवन की बात हो रही है कि उसको वहाँ पे रहना पसंद था, लेकिन आज हमारे जीवनों में मेरे भाई और बहनों परमेश्वर की उपस्थिति, we must love the habitation of the presence of God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति का जो वातावरण है उससे हमें प्रेम होना चाहिए, हमें लती हो जाना चाहिए, हमें आदत होनी चाहिए कि उसकी उपस्थिति में हम बने रहें। We must be addicted to His presence and be longing to be in His presence all the time. And we must love His presence. Praise God. उसकी उपस्थिति में हमें रहना पसंद होना चाहिए। और उसके बाद जब हम देखते हैं आखिरी में वो कहता है, But as for me, I will walk in my integrity. See, once again we can see the confidence of this person. एक बार फिर से इसके हम हियाव को देख सकते हैं। वो कहता है, मैं खराई में चलूंगा, डगमगाऊंगा नहीं। He is so sure that yes, he will walk in integrity. Dear people, I would like to challenge you today. Examine yourself. Are we so sure about it? Are we so sure that yes, we will walk in integrity? हम खराई से चलेंगे? क्या हम दृढ़ता से इस बात को कह सकते हैं? जांचें एक बार हम लोग खुद को। उसके बाद redeem me and be merciful to me. Of course, हमें जरूरत है कि हाँ, हमारा परमेश्वर हमारे प्रति करुणामय रहे। My foot stands in an even place. In the congregation, I will bless the Lord. Dear people, what is that even place for you? For me, it is the rock of my salvation, that is Jesus Christ. वो सही स्थान क्या है जहां पे वो खड़ा होता है व्यक्ति? आपके लिए क्या है वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह, वो हमारी चट्टान होना चाहिए जिस पे हम दृढ़ता से खड़े रहे। And in the congregation I will bless the Lord. और सभा में सबों के सामने मैं परमेश्वर के नाम को महिमा दूंगा। प्रभु का वचन और आपको आशीष दे।
you, Jesus. We glorify your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we give you all the glory and honor. कुछ देर अपने आवाज़ों को उठाकर, अपने आवाज़ों को उठाकर, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तेरे उपस्थिति में, परमेश्वर जब तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, हालेलुया, आपके वचन कहता है कि मैं आखिर आपको आशीष दूंगा। Lord, we seek your face, and Lord, speak your blessings on our life this morning, oh Father God, as we come in your presence, oh God. Oh, Rabala Shantare, Ribiana Rala Hantana Rabu, Ribiantara Rabalabalabu. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Come on, sing together. Power and He's the all-powerful God. It's to the King. Mountains bow down and the seas will roar, and the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord, this morning I am very sure that your promises will come to pass in my life, oh God. Hallelujah, Lord. I may have been waiting for a long time, परमेश्वर, which I have time में बहुत दिन से परमेश्वर मैं एक आशीष के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ परमेश्वर, लेकिन मैं जानता हूँ जिसने वादा किया है वो वफादार है। Hallelujah. My Jesus, yes, my Savior, Lord, there is none like you. There's none like you all of my days. All of the praise, the wonders of your mighty love, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord. Oh, show us your power this morning, oh Father. Mountains bow down and the seas will roar, and the sound of your great name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. अपने दोनों हाथों को उठाकर nothing, yes, परमेश्वर तेरे नाम को पुकार के हम आपके महिमा देते हैं। ओ तू काबिल है, मेरे जीवन में हर कुछ से हालेलुया कमियों को परमेश्वर मिटाने के लिए तू काबिल है। Yes, Lord, at the sound of your great name, I sing for joy at the works of. Thank you for your sweet presence, Holy Spirit. Love you forever. Yes, Lord. Nothing compares to the promise I
परमेश्वर की उपस्थिति में अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपने हृदय के गहराई से उस परमेश्वर की ओर देखे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया। वो चमत्कार करने के लिए काबिल है हमारे जीवन में। परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर हृदय के गहराई से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए, ओ एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, हालेलुया। ताली बजाकर उस परमेश्वर के लिए हृदय के गहराई से वी थैंक यू होली स्पिरिट, वी थैंक यू होली स्पिरिट, वी थैंक यू होली स्पिरिट। ओ आत्मा मंदिरा था, पवित्र आत्मा मंदिरा था, यस आत्मा मंदिरा था। ताली बजाकर, पवित्र आत्मा मंदिरा था, पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंदिरा था, यस पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंदिरा था। फिर से आत्मा मंदिरा था, आत्मा मंदिरा था, खुशी होकर पवित्र आत्मा मंदिरा था, हे पवित्र आत्मा, आत्मा मंदिरा था, पवित्र आत्मा मंदिरा था, पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंदिरा था, पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंदिरा था। अंधे देखते हैं, तेरे सुनते हैं, यस 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 यस, अंधे देखते हैं परमेश्वर के शक्ति से, उस सामर्थ से, यस हो यीशु मसीह के नाम से सुनते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ से, यीशु मसीह के सामर्थ से अंधे देखते हैं। आत्मा मंदिरा था, यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा मंदिरा था। आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा की उपस्थिति अभी मंड रहा है। Oh, thank you Lord, पेंटिकोस के समान आत्मा मंदिरा था, पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंदिरा था। अभिषेक मिलता है, अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलती है, सामर्थ मिलती है, अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलती है, यस हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से अभिषेक मिलता है, सामर्थ, यीशु मसीह के नाम से सामर्थ मिलती है, आत्मा मंदिरा था, यस लॉर्ड, आत्मा मंदिरा था। यीशु के नाम में आजादी, ओ यीशु के नाम में छुटकारा, पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंदिरा था, पेंटिकोस के दिन समान आनंद मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, अपने परिवार में आनंद मिलता है, आपके व्यक्ति के जीवन में, हालेलुया, हमारे कलीसिया में यीशु मसीह के नाम से आनंद मिलता है, यीशु मसीह के नाम से शांति, आत्मा मंदिरा था, पवित्र आत्मा मंदिरा था, हालेलुया, आत्मा मंदिरा था, पवित्र आत्मा मंदिरा था, पेंटिकोस के दिन समान कलीसिया में जो कार्य किया, जो पवित्र आत्मा अभी हमारे बीच में है, हालेलुया, उसके सामर्थ से साथ ज्योति मिलती है, ज्योति मिलती है, जय भी मिलती है, जय भी मिलती है, ज्योति मिलती है, ज्योति मिलती
Oh, we thank you, Holy Spirit. Ribala shantana rabala lalari antore. पवित्र आत्मा तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद. Holy Spirit, we thank you for this wonderful presence in our places, oh God. Thank you for rejuvenating us once more in your presence this morning. Oh, we give you all glory and honor, Master. Hallelujah. Lord, as we sang, Lord, you are the source of peace, happiness, joy, strength. And you are the source of everything, oh Father God. Every good and perfect gift comes from the Father who is seated above. Lord, we give you all glory and honor. परमेश्वर, हम आपको सारे आदर और महिमा हम देते हैं. आज के सभा को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं. परमेश्वर, आप जिस वचन से हमसे बात करना चाहते हैं, आप जो कार्य हमारे जीवन में करना चाहते हैं, Lord, whatever you're wanting to do in our life, Lord, we surrender ourselves to listen to your word and to, Lord, walk in your precepts, oh Father God. We give you all glory and honor. सारे आदर महिमा परमेश्वर हम आप ही को देते हैं. In Jesus' matchless and mighty name we ask and pray. Amen, amen, amen. Praise God. Praise the Lord. What a wonderful time of worship. और परमेश्वर की स्तुति हो, कितना ही सुंदर समय आराधना का था. Our God is a wonderful God. और हमारा Hallelujah. परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है. Let's think about His faithfulness for the last 1 year. और पिछले एक वर्ष से आइए उसकी हम लोग विश्वास योग्यता के बारे में सोचें. On our every ups and down, He was with us. He was upholding in His right hand, and He enabled us to walk with Him and not to fall down, but to be strong in the Lord. Hallelujah. और हमारे हर एक उतार चढ़ाव में वो हमारे साथ रहा, हमारे हाथ को थामे रहा, हमें गिरने से बचाया और हमें संभाला और अपने साथ चलाया. Shall we together clap our hands wherever we are and let's give thanks to God and honor Him. Amen. Hallelujah. आइए जहां पे भी हम हैं जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको आदर दें. Shout a hallelujah to the Lord. और जोर से Hallelujah. परमेश्वर के लिए हालेलुया चिल्लाएं. Raise some voice and worship our living God. और कुछ आवाज उठा के उसकी आराधना करें. Yes, and He proved it that He is a faithful God to each one of us. हाँ, और उसने साबित किया है कि वो हम सबके प्रति एक विश्वास योग्य And He परमेश्वर है. proved it there is no one like Him. Hallelujah. और उसने साबित कर दिया कि कोई भी उसके समान नहीं है. Oh, in this morning, how many of you are happy to worship that living God and to be thankful and grateful to Him? Hallelujah. और आज की सुबह कितने लोग खुश हैं उसकी आराधना करने के लिए और उसके प्रति धन्यवादित होने के लिए. In 2020, from the beginning till now, we have seen and faced all the situations that we never seen in our life. और 2020 से लेके अभी तक हम लोग ने ऐसी परिस्थितियों को देखा जिसको हमने कभी भी पहले अपने जीवन में नहीं देखा था. But even in the midst of the storms, in the midst of this pandemic, in the midst of the calamity, but still our Lord Jesus proved that He is faithful, He is a good shepherd, and He is Jehovah Jireh. लेकिन इस Hallelujah. समय बीमारी के समय में, परेशानी के समय में, कठिनाई के समय में भी परमेश्वर ने ये साबित कर दिया कि वो यहोवा यीरे है जो हमारे लिए प्रबंध करता है. Hallelujah. In this morning, if you are happy, I want wherever you are, shout hallelujah and show the gratitude towards God by doing, standing and clapping and rejoicing. Raise your voice and raise some banners and go out of your house and shout hallelujah and worship our living God. और यदि Hallelujah. आज की सुबह आप खुश हैं तो मैं चाहता हूं आप खड़े होके ताली बजा के आवाज उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें जहां पे भी आप हैं. Praise the Lord. 2020 was an year of a roller coaster ride. Amen. और 2020 एक रोलर कोस्टर के यात्रा करने जैसा साल था. Amen. But at the end of this year, oh, that we are going to have a new experience, and God is going to give to us.
लेकिन इस साल के अंत में एक नया अनुभव हमारा होगा जो परमेश्वर हमको देंगे। In 2020 there was many promises of possessing, but in 2020 we might be thinking that how it's going to happen. Oh, it never happened, but never lose your hope in the Lord, because 2020 may not be the same again, but 2021 God is going to give you new strength and new hope, and we are going to see the land, possessing of land and possessing of promises. और हमने 2020 में जितने वायदों को प्राप्त किया, जितने प्राप्त करने की चीजों को हम लोग ने सुना, वायदों को सुना, लेकिन उसको पूरा होता हुआ हम लोग 2020 में नहीं देख पाए। हो सकता है 2020 दोबारा लौट के ना आए, लेकिन 2021 में हम लोग उन सभी वायदों को पूरा होता हुआ देखेंगे। उस वायदे के स्थान पे जो वायदे हमसे किए गए हैं उसको प्राप्त करता हुआ हम देखेंगे। In 2020 was the year of Moses, but in 2021 God is telling you this year, the coming year is going to be the year of Joshua's. Hallelujah. और 2020 हो सकता है मूसा का समय रहा हो, लेकिन 2021 परमेश्वर बताते हैं कि वो यहोशुआ का समय होने वाला है। Amen. If you believe it, God is looking for some Joshua generation, so that people, that generation can, hallelujah, conquer the promises that God has given to Moses, God has given to the forefathers, and this coming year is going to be a year of possessing. यदि आप विश्वास करते हैं तो ये साल जो है ये आपके लिए प्राप्त करने वाला साल होने वाला है। परमेश्वर यहोशुआ को ढूंढते हैं जिनको वो जिम्मेदारियां सौंप सके और इस साल आप प्राप्त कर सके। We need to pursue everything that God has for us in 2020-21. और जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए 2021 के लिए रखा है उसको हमें प्राप्त करना है, उसके पीछे हमें जाना है। In order to possess the promises, the land of His promise in 2020-21, there will be battles to fight and foes to defeat. और वो वायदे जो परमेश्वर ने हमसे किए, वो वायदे का स्थान जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा, 2021 में उसको प्राप्त करने के लिए हमें युद्ध लड़ने पड़ेंगे, हमें लड़ाइयों का सामना करना होगा। So God wanted to tell you in 2021 there will be battles to fight and there will be foes to defeat. और परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि 2021 में ऐसे युद्ध होंगे जिसको आपको लड़ना है और ऐसी ताकतें होंगी जिसको आपको हराना होगा। In 2020 you've had lot of battles in your life. There was lot of battles to fought and there was many foes to defeated. But 2021 you will see another battles and another foes, and that also you have to fight and to defeat. Hallelujah. और 2020 में आपने बहुत सी लड़ाइयों को लड़ा होगा, आपने जीता होगा, उनको हराया होगा, लेकिन आपको 2021 में भी बहुत से युद्ध को लड़ना है और उनको हराना है। God told Joshua, the time of Moses is over. My servant is dead. Now I am giving you a responsibility, but I will be with you. You have to fight and possess the land. Oh, Moses has his battles. Moses' time of battles also was, you have to defeat it. You fought the good fight, but now Joshua, this will be a new beginning and new battles you have to face, and you have to possess the land. और परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मेरा दास मूसा मर चुका है, लेकिन अब मैं तुम्हें चुनता हूं, तुम्हें वो जिम्मेदारियां सौंपता हूं। कई युद्ध थे जो मूसा ने भी लड़े, तुमने भी अच्छी दौड़ को दौड़ा, अच्छे युद्ध लड़े, लेकिन और ज्यादा जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं, और ज्यादा युद्ध है जो तुम्हें लड़ने होंगे और उन युद्धों को तुम्हें जीतना होगा। यहोशुआ, Oh, God said, Joshua, you know how Moses fought all these fights? Because Moses, wherever Moses goes, my presence was there. I was fighting the battle. In 2020, I was fighting the battle for you. In 2020-21, God is telling that I will be with you. Joshua, I am going to be with you as I was with Moses. I am going to be with you. I will be fighting your battle. It doesn't matter how big is the battle and how worse is the battle. Joshua, as I was with Moses, I am going to be with you. Hallelujah. और परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, यहोशू क्या तुझे पता है कि मूसा युद्ध को क्यों जीतता आया? क्योंकि मेरी उपस्थिति उसके साथ रहती थी। उसके युद्ध उसके नहीं वरन मेरे थे, मैं उसके लिए लड़ता था। 2021 में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ लड़ूंगा यहोशू, और जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा।
And I want everybody to read Joshua chapter 1 verse 1 to 9. You can see how God is appointing Joshua, how God is encouraging Joshua, and God is telling Joshua, I am going to be with you as I was with Moses. और परमेश्वर Hallelujah. और मैं चाहता हूं कि आप हर कोई यहोशू उसका पहला अध्याय 1 से 9 तक पढ़े और देखें किस प्रकार से वो युद्ध लड़ता है, कैसे परमेश्वर उससे बात करते हैं, परमेश्वर उससे कहते हैं कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी If रहूंगा। 2020 was the time of Moses, Joshua, this is going to be 2021. This is your time. You have a battle. You have a foe standing against you. You have hallelujah, Jericho standing against you. You have new fights. You have to cross the Jordan. Be ready, Joshua. Be strong. You are going to conquer the promises. Hallelujah. और यदि 2020 मूसा का समय रहा तो 2021 यहोशुआ का समय होने वाला है। तुम्हें युद्ध लड़ने होंगे, तुम्हें यर्दन को पार करना होगा, तुम्हें सेनाओं को हराना होगा। Oh, in possessing the land, for there to be a going into and there must be a coming out of. और यदि कोई स्थान को प्राप्त करने के लिए, भूमि को प्राप्त करने के लिए उसमें अगर जाना है तो पहले कहीं से बाहर आना होगा, And there should be going into. और उसके बाद अंदर घुसना होगा। Hallelujah. We are going into 2021 and we are coming out of 2020. और हम लोग 2021 में प्रवेश कर रहे हैं और 2020 से बाहर आ रहे हैं। Hallelujah. We are going into 2021 and we are coming out of 2020. और हम लोग 2021 में प्रवेश कर रहे हैं और 2020 से बाहर आ रहे हैं। Oh, this is the time of Joshua generation. और ये Hallelujah. यहोशुआ की पीढ़ी का समय है। Joshua, you are coming out of a time in the wilderness. और यहोशू तुम बयाबान के एक समय से बाहर आ रहे हो You are coming out of the time of slavery, और तुम एक बंधुआई के समय से बाहर आ रहे हो a time of disobedience, और अनाज्ञाकारिता के समय से बाहर आ रहे हो a time of no faith, और एक बिना विश्वास के समय से बाहर आ रहे हो and you are going into the land of promise. और तुम Amen. वायदे के Hallelujah. स्थान में प्रवेश कर रहे हो You are going into the land of plenty. और तुम बहुतायत के प्रदेश में प्रवेश कर रहे हो। You are going into a land of a bright future. तुम एक उज्जवल भविष्य की भूमि में प्रवेश कर रहे You हो are going into a land of inheritance. और तुम एक Hallelujah. प्राप्त करने के स्थान में प्रवेश कर रहे हो। If 2020 is the time of wilderness in your life, God want to tell you that the 2021 is going to be a land of promise. और यदि Hallelujah. 2020 आपके जीवन में बयाबान का समय रहा हो तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि 2021 आपके जीवन में बहुतायत का स्थान, वायदे का स्थान होने वाला है। Oh, in 2020 is a time of slavery, it's a time of disobedience, it's a time of unbelief. God want to tell you, let 2021 be a year of freedom, spiritual freedom in your life, a year of obedience, a year of moving by faith. Hallelujah. और 2020 हो सकता है आपके जीवन में एक बिना आशा का, बिना विश्वास का और बंधुआई का समय रहा हो, लेकिन 2021 आपके लिए आत्मिक स्वतंत्रता का और प्राप्त करने का और आशीषों का और विश्वास योग्यता में चलने का और आज्ञाकारिता में चलने का साल होने वाला है। Somebody shout a hallelujah in your places wherever you are watching. Let us raise some voice and make some sound and say to God, yes, I believe it and I receive it. 2021 is not going to be the same as 2020. Oh, I believe that if 2020 was an year of slavery, it was an year of hallelujah, wilderness, disobedience. But 2021, Lord, I'm not going to be the same. My life is not going to be the same. My family is not going to be the same. It's going to be an year of obedience, year of moving by faith, and a year of freedom. Hallelujah. और अब जहां पे भी है, मैं चाहता हूं अपने स्थान पे आप अपनी आवाज को उठा के इस बात को बोले कि मैं प्राप्त करता हूं और 2021 जो है वो मेरे लिए एक बहुतायत का साल होने वाला है। 2020 शायद मेरे लिए बयाबान का समय रहा हो, अनाज्ञाकारिता का समय रहा हो, लेकिन 2021 मेरे लिए विश्वास में चलने का, आज्ञाकारिता का, प्राप्त करने का, आशीषित होने का साल होने वाला है।
Amen, amen, amen. God said to Joshua, Moses had his fight, but now I want you to take this generation. You are going to have a very special fight, a very different fight. You are going to see the enemy that you never seen in the past. You are going to face, oh hallelujah, the flood of Jordan. You are going to face, oh, the big Jericho wall. You are going to face so many difficulties that you never seen in the past. But make it sure, go Joshua, be obedient to God. Oh, you put faith in the Lord and be obedient and faithful to God, and I will be with you and fighting all your battles. परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मूसा के युद्ध का समय अब खत्म हुआ और अब तुम्हारा युद्ध है, तुम्हारे सामने नए युद्ध आएंगे। तुम्हें बड़ी बड़ी यरीको की दीवारों को गिराना होगा, तुम्हें यरदन नदी के पार जाना होगा, बड़ी ताकतों को हराना होगा, बड़े सामर्थ को गिराना होगा, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। Amen. Hallelujah. If 2020 was a season of spiritual dryness, in 2021, pray to God, Lord, I don't want to have that spiritual dryness that I face in 2020, but I want to experience a greater breakthrough of spiritual abundance in my life. Hallelujah. और यदि 2020 आपके जीवन में आत्मिक सूखेपन का समय रहा हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं 2021 मेरे जीवन में एक आत्मिक बढ़ोतरी का समय होने पाए। Amen. Hallelujah. In Psalm 138 verse 8 it says, the Lord will fulfill his purpose for me. और भजन संहिता उसके 138 के 8 में कहता है कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को मेरे जीवन में पूरा करेगा। Hallelujah. Believe this and receive it and say, in 2021 the Lord will fulfill his purpose for me and my family. इसको विश्वास करके आप अपने जीवन में प्राप्त करें और बोले, परमेश्वर अपने उद्देश्य को मेरे और मेरे परिवार के लिए 2021 में पूरा करेगा। The KJV says, the Lord will perfect that which concerns me. Amen. और वचन बताता है, इनके जीवन में लिखा है कि परमेश्वर जो मुझे चिंतित करता है उसको सिद्ध करेगा। Oh, in 2020 he was concerned about you, and God want to tell you in 2021 he is the same God. He never changed. He is still concerned about you, and he will fulfill his purpose for you and for your life. और 2020 में परमेश्वर ने आपका ख्याल रखा, आपकी चिंता करी, और परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। वो 2021 में भी आपके विषय में चिंतित रहेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपके लिए प्रबंध करेगा। He wants us to come out of our past and go into the land of his promise. Amen. और वो चाहता है कि हम अपने इतिहास से बाहर निकल के आएं और उसके वायदे के स्थान में प्रवेश करें। Let us come out from all our past. Hallelujah. अपने सारे इतिहास से हम बाहर निकल आएं। Oh, let us come out from all the spiritual dryness and enter into the promised land. Amen. और जितने भी हमारे जीवन में आत्मिक सूखापन रहा, उस सब से हम बाहर आ जाएं और उस बहुतायत के स्थान में हम लोग प्रवेश करें। Oh, Holy Spirit want to tell you to enter into that land in 2021. We must be ready for battle. और पवित्र आत्मा आपको बताना चाहते हैं कि 2021 में उस भूमि में, उस स्थान में प्रवेश करने के लिए हमें युद्ध के लिए तैयार रहना है। Oh, in 2020 the battle was not the same, and in 2021 the battle may not be the same as you fought in 2020. Hallelujah. और जिस प्रकार से आप 2020 में लड़े, हो सकता है 2021 का युद्ध उसी के समान ना हो। But to live in the land of promise in this new year, we have to put our past failures from previous years to rest. लेकिन हमें अगर 2021 में नए साल में हमें प्रवेश करना है उस वायदे के स्थान में, तो हमारी जो पुरानी असफलताएं रही हैं उसको हमें किनारे रखना होगा। Put our past failures from previous years to rest. Hallelujah. और बीते सालों की जो हमारे असफलताएं रही हैं उसको हम आराम करने के लिए रख दे किनारे। We have all had times in our lives when things does not go as we plan, when we look back and say why it's happened in this way. और हमारे जीवन में ऐसे बहुत सी बार ऐसा होता है जब चीजें जैसे हमने योजना बनाई होती है उस तरीके से नहीं गुजरती है, और फिर हम इस सवाल को पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ। The entire world has many agendas, many plans, many purposes for 2020, but this pandemic has changed every plans upside down. और पूरे विश्व भर में कई योजनाएं बनाई गई, कई उद्देश्य थे, कई एजेंडा बने, लेकिन इस महामारी ने पूरे संसार को उथल पुथल कर दिया है। And God proved that man
has many ways, many plans, but God's purpose will fulfill. और परमेश्वर Hallelujah. ने साबित कर दिया कि मनुष्य की तो बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, लेकिन परमेश्वर का ही उद्देश्य पूरा होगा। But remember, any negative responses towards what God has birthed in you is acceptance of defeat. लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि कोई भी आप लोग नकारात्मक बात बोलते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसके विरुद्ध में, तो वो आपको असफलता की आप स्वीकृति कर रहे हैं। Many negative responses came out in 2020. Hallelujah. और 2020 में बहुत सी नकारात्मक बातें आई। From our mind, from our life, in our family, in our relationship, many negative responses came out. हमारे मन में, हमारे परिवार में, हमारे मुंह से, हमारे शब्दों में बहुत सी ऐसी नकारात्मक बातें आई। In this morning, let's ask forgiveness for all the negative responses and say to God, Lord, we don't want to see in the past, we don't want to live in the past, but we want to hope for what God has kept for us, and we want to trust in God and say, God, your plans remain forever. Your purpose for that you concern for me will fulfill in my life. और आज परमेश्वर से आप बोल दे कि परमेश्वर जो भी चीजें रही हैं, आज की सुबह हम क्षमा मांगे परमेश्वर से और बोले परमेश्वर आपकी जो योजनाएं हैं, आपके जो विषय है, कल्पनाएं हैं मेरे बारे में, वो पूरी होने पाए। And Holy Spirit want to tell you in 2020 you have an attitude. In 2021 with the same attitude you cannot possess the promised land. You will not enter that great promises because only one generation failed in their journey, in their spiritual life, in their spiritual journey, and they never possessed the land because of their wrong attitude. और पवित्र आत्मा आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं जो रवैया आपका 2020 में रहा, अगर उसी के साथ आप 2021 में प्रवेश ना करें, क्योंकि वो पीढ़ी जो उसी पुराने खराब रवैये के साथ जो थी वो खत्म हो गई और वायदे के स्थान में प्रवेश ना कर पाई। In Ephesians 4:23, be made new in the attitude of your minds. Hallelujah. और इफिसियों 4:23 में कहता है कि तुम्हारे मन, तुम्हारा रवैया, मन का चाल चलन तुम्हारा बदलता जाए, उसमें नए In हो this जाओ। morning, say to the Holy Spirit, Lord, made new my attitude. Hallelujah. और आज की सुबह पवित्र आत्मा से बोले मेरे रवैये को, मेरे व्यवहार को आप नया कर दीजिए। We don't want to lose the promises. We don't want to lose the battles because of our wrong responses, negative responses, and our wrong attitudes. और हम उन Hallelujah. वायदों को नहीं खोना चाहते, हम उस युद्ध को नहीं खोना चाहते, नहीं हारना चाहते जो हमारे गलत स्वभाव के कारण है। And we want to believe that 2020 is going to be filled with promises and victories of God in our lives. और हम विश्वास Hallelujah. करते हैं कि जो 2021 होने वाला है वो परमेश्वर के वायदों से, उसकी भलाई से भरा रहेगा, Because our God is still on the throne. Amen. क्योंकि हमारा परमेश्वर Hallelujah. आज भी उस सिंहासन पे है। God deals with the past failures. और हमारा परमेश्वर जो है पुरानी असफलताओं को देखता है हमारी। Amen. God said to Joshua, Moses, my servant, is dead. मेरा सेवक मूसा मर चुका है। Those things which inhibit God's plan for your life must be declared dead. और जो भी चीजें आपके जीवन में थी जो परमेश्वर की योजना को रोकती थी वो खत्म हो जाए। Hallelujah. Because Moses was not essential to promise the land and reap. क्योंकि मूसा जो था वो उस वक्त महत्वपूर्ण नहीं था कि उसी की ही जरूरत थी उस वायदे के स्थान में प्रवेश करने के लिए। Amen. Sometimes we pin our hopes on some people, some leaders, but the truth is, entrance to the promise is only through the Lord. Hallelujah. और कई बार हम अपनी आशाओं को हम लोग कई लोगों पर लगा देते हैं, भरोसे को लोगों पर लगा देते हैं, लेकिन परमेश्वर के वायदे के स्थान में प्रवेश करने के लिए हमें किसी मनुष्य की नहीं, किसी और चीज की नहीं, लेकिन केवल प्रभु की जरूरत है। Somebody shout hallelujah. और कोई हालेलुया बोले। Moses was the servant, he is still my servant, but his time is over. The past is over. Now there is new responsibilities, new chances, new trials, new battles. Here God is looking for Joshua's, the generation of Joshua, to stand up and move forward and to cross and possess the land that is promised. Hallelujah.
अभी तक मूसा रहा, लेकिन अब ऐसा समय है जब परमेश्वर नई पीढ़ी को देखते हैं, यहोशुआ को ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो नए युद्ध, नए तौर तरीके, नई कल्पनाओं के साथ नई चीजों का सामना करते हुए आगे बढ़े। Oh, in 2020 we pin our hope on people, we pin our hope on some other things, we pin hope on many other things of this world, but in 2021 say to God, Lord, you alone will be our rock, God, you alone will be our sword, God, you alone will be our shield, you alone will be the way to victory. Hallelujah. और 2020 में हम लोग ने अपनी आशा को कई लोगों पर लगाया, इस संसार की कई चीजों पर लगाया, लेकिन 2021 में हम परमेश्वर से आज कह दें कि 2021 में परमेश्वर केवल आप ही हमारी विजय है, आप ही हमारा सब कुछ है, हमारी आशा केवल आप पे है, आप ही हमारी तलवार है। Only Jesus, our Savior, can lead us into the place of blessing He has for us. केवल यीशु हमारा उद्धार करता ही हमें उस स्थान में प्रवेश करा सकता है जो आशीष का है। The only way to cross over into that land of promise and blessing in this year is by faith in Christ Jesus. उस वायदे के स्थान में प्रवेश करने का, उस आशीष के स्थान में प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता है, वो है हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा। Remember, we cannot take the land of promise until we declare the past dead. Hallelujah. और याद रखिए, हम तब तक वायदे को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक इतिहास को हम लोग बीती बातों को मृतक ना घोषित कर दें। Oh, in 2020, let that past of so many years be dead and buried, so that God can give us an opportunity, new battles that we can fight. Oh, because God has promised He is going to be with us. Amen. और 2020 के हम लोग बीती बातों की सारी असफलताओं को हम लोग खत्म कर दे, मृतक घोषित कर दे, ताकि नए वादों को, नई चीजों को, नई योजनाओं को परमेश्वर हमें 2021 में दे सके। God has an opportunity awaits for us. परमेश्वर के पास एक अवसर है जो हमारा इंतजार करता है। This new land of promise is ours. Hallelujah. ये वायदे का नया स्थान हमारा है। In Galatians 3:29 it says, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. और गलातियों 3 उसके 19 में लिखा हुआ है, यदि तुम विश्वास करते हो तो तुम इब्राहिम की साथ आशीष पाओगे, क्योंकि तुम उसके वंशज ठहरोगे। 3:29, Galatians 3:29. गलातियों 3 का 29। Abraham's promise of the spiritual promised land is ours. Amen. और इब्राहिम का जो वायदे का स्थान जो उसको किया गया था वो हमारा होगा। But that spiritual promised land, hallelujah. और वो आत्मिक वायदे का स्थान, Amen, it belongs to us. वो हमारा है। But it will only obtained by conviction. It only obtained by faith, and to fight the battle not alone but with the help of the Lord. Hallelujah. लेकिन वो केवल युद्ध के द्वारा, मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, वो परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा। Hallelujah. Upon entry into the promised land, wilderness wandering is behind you. Amen. Hallelujah. और जब आप प्रवेश करने वाले होंगे उस वायदे के स्थान में, तो ये ना भूलिए कि वो बयाबान जो आप जिसमें थे उसको आप पीछे छोड़ के आए, वो आपके पीछे है। Today is the time to enter into the new land, God's promises. Hallelujah. और आज जो समय है वो परमेश्वर के नए वायदे के स्थान में प्रवेश करने का समय है। You cannot have our food in 2020 and our food in 2021. It's the time to move on. Hallelujah. और जो भोजन आपने 2020 में खाया वो 2021 का समय नहीं है, वो कदम वहीं पे रखने का नहीं है, वो आगे बढ़ने का समय है। It's time to move on. Hallelujah. वो आगे बढ़ने का समय है। You cannot put your foot on the past and you cannot put on the future. Let the time to move on. Hallelujah. और अपने एक कदम को आप इतिहास में रख के और एक कदम को आगे रख के नहीं बढ़ सकते, नहीं खड़े रह सकते, लेकिन ये आगे बढ़ने का समय है। We must come to grips with resentments, bitterness, sins and failures of our past. और असफलताएं, कड़वापन, पाप और इस सब के हमें आगे बढ़ना है। Hallelujah. The old baggage does not belongs to the promised land. Hallelujah. और वो जो पुराना बैग हमारा था उसको हम लोग उस वायदे स्थान में नहीं ले जा सकते। You are not called to settle for the wilderness. Hallelujah. और आप बयाबान में रहने के लिए नहीं बुलाए गए। You are not called to settle in 2020. अब 2020 में रुक जाने के लिए नहीं बुलाए गए। You are not called to settle on the past.
और आप इतिहास में रह जाने के लिए नहीं बुलाए गए, Set your sight on the promised land. Hallelujah. लेकिन वायदे के स्थान पे अपनी नजरों को आप लगाएं। 2020 is over. Amen. 2020 से खत्म हुआ, Few more days is left. कुछ दिन और बाकी हैं बस। It's time to move on to the victorious to 2021. और ये एक विजयी 2021 की ओर बढ़ने का समय है, And the Holy Spirit is going to help you. और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। God is looking for a generation. Hallelujah. परमेश्वर एक पीढ़ी को खोजते हैं Or entirely different from an older generation. जो पुरानी पीढ़ी से बिल्कुल अलग होगी, Willing to take the challenge. जो एक चुनौती को लेने के लिए तैयार हो, Willing to not move from the word of God right or left. Hallelujah. जो परमेश्वर के वचन से दाएं या बाएं हटने के लिए बिल्कुल ना हो, Willing to agree with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के साथ सहमति के लिए वो तैयार रहे, Willing to be go together and fulfill the purposes of God. और एक साथ परमेश्वर के साथ चल के उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए वो तैयार Willing रहे, to fight the battle and conquer the promise. Amen. युद्ध को लड़ने के लिए और वायदे को प्राप्त करने के लिए तैयार हो, A generation who is not get tired of the past battles. और एक ऐसी पीढ़ी जो पुरानी लड़ाइयों से ना थके। God is looking for people with the spirit of Caleb. और परमेश्वर कैलेब की आत्मा के जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। Even in the old age, he is telling, give me these mountains, give me this giant mountains. I will conquer it for the Lord, for the glory of the Lord. और दीर्घायु में भी उसने कहा कि मुझे ये पहाड़ दे दो, मैं उसको भी विजय प्राप्त करूंगा परमेश्वर की महिमा के लिए। Oh, God is looking for people, those who say, I and my family will serve the Lord as we served in 2020 and we will be serving in 2021. और परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो कहेंगे मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे, जैसे हमने 2020 में करी 2021 में भी करेंगे। And God want to tell you that the 2020 that people, those who are ignored, those who are never noticed, in 2021 God is going to honor you because God was watching your faithfulness in 2020. और परमेश्वर बताते हैं, कहना चाहते हैं कि 2020 में जिन लोगों को कोई आदर नहीं मिला, जिनको पहचाना नहीं गया, परमेश्वर ने आपकी विश्वास योग्यता को 2020 में देखा है। 2021 में आप आदर को, सम्मान को पाएंगे। Oh, in 2020, those who honor God, in 2021 God is going to honor them. Amen. 2020 में जिन्होंने परमेश्वर को आदर दिया, 2021 में परमेश्वर उनको आदर देगा। Be ready to face the battles. युद्ध का सामना करने के लिए तैयार रहें, Be ready to conquer the land. Hallelujah. और वायदे के स्थान को प्राप्त करने के लिए The और विजय प्राप्त करने के battle लिए for तैयार रहें। 2021 will be different. 2021 का युद्ध अलग होगा, But in this morning, God want to tell you, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, as I was with Moses, जैसे मैं मूसा के साथ था, I will be with you, Joshua. मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा यहोशू, I will be with you, Joshua. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा यहोशू। And God is telling you in this morning, और आज की सुबह परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, as I was with you in 2020, जैसे मैं 2020 में तुम्हारे साथ था, and I will remain with you in 2021. मैं 2021 में भी तुम्हारे साथ रहूंगा, And my presence will go with you. और Hallelujah. मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ जाएगी। Help us, Lord, to remain in your presence. परमेश्वर हमारी सहायता करिए कि आपकी उपस्थिति में हम बने रहें। Let's close our eyes आइए अपनी आंखों को बंद करें and say to God, Lord, और परमेश्वर से बोले, परमेश्वर in 2020 there was many shortcomings in our lives. 2020 में हमारे जीवनों में बहुत सी कमियां रहीं, Different kind of battles, अलग अलग प्रकार के युद्ध रहे, resentments, और दुख रहे, bitterness, कड़वापन रहा, sins, failures of our past, पाप रहे, असफलताएं रही हमारे इतिहास की, disobedience, अनाज्ञाकारिता, murmuring, बड़बड़ाना, or dishonoring the servants of God. परमेश्वर के दासों का अनादर करना। Father, forgive us, Lord. पिता हमें क्षमा करिए। Lord, every negative responses we cancel it in the name of Jesus. परमेश्वर हर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं। And Lord, give us a right attitude, Holy हमें एक Spirit. सही स्वभाव दीजिए पवित्र आत्मा। Lord, we don't want to, Lord, remain in the past. हम इतिहास में बने रहना नहीं चाहते। We are not called to remain in the past. हम इतिहास में रहने के लिए नहीं बुलाए गए। We don't want to be the same again, Lord.
हम वैसे ही नहीं होना चाहते परमेश्वर। Transform our mind. हमारे मनों को बदल दीजिए, Renew our mind. हमारे मन को नया करिए And prepare us for the battle, Lord. और हमें युद्ध के लिए तैयार करिए प्रभु। Lord, we are going to together conquer the promises. और एक Hallelujah. साथ मिलके परमेश्वर हम वायदों को प्राप्त करेंगे। And Lord, I release your blessing upon your people, all those who are watching us. परमेश्वर मैं आपके लोगों पे, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके ऊपर आपकी आशीषों की घोषणा करता Thank हूं। you, Lord, for speaking to us, Lord. हमसे बात करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। My servant Moses is dead. मेरा सेवक मूसा अब नहीं रहा। Joshua, move forward. यहोशू आगे बढ़ो, Go and conquer the land. जाओ और विजय के स्थान को प्राप्त As करो। I was with Moses, I will be with you. जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तुम्हारे साथ रहूंगा। 2020 is going to be over. 2020 खत्म होने वाला है, But 2021, I will be with you. लेकिन 2021 में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Let's go and enter and conquer the promises. चलो और प्रवेश करें और उन वायदों को प्राप्त करें। And take a decision in this morning. और आज की सुबह एक निर्णय को लीजिए। Lord, I'm not called for 2020. प्रभु मैं 2020 के लिए नहीं बुलाया गया, I'm called to move forward. मैं आगे बढ़ने के लिए बुलाया I गया। fix my eyes on the Lord. मैं अपनी नजरों को परमेश्वर आपकी I ओर fix लगाता my हूं। eyes on the promises that He has said. मैं अपनी नजरों को परमेश्वर आपके वायदों पे लगाता हूं जो आपने Holy दिए। Spirit, renew my mind. पवित्र आत्मा हमारे मन को नया करिए, Strengthen us, Lord, हमें बल दीजिए परमेश्वर, and guide us, Lord. और हमारी अगुवाई करिए। Thank you, Lord, धन्यवाद for प्रभु speaking to us, Lord. हमसे बात करने के लिए। In Jesus' most precious name we pray. यीशु के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। Amen, 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 amen. Hallelujah. May God bless you by this word. और प्रभु आप सभी को इस वचन को सुनने पे आशीष दे। And I believe that God has spoken to us and He is going to do great things for us. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने हम सभी से बात करी और हमारे लिए वो अद्भुत काम करने वाला है। Oh, we are coming in the close of 2020. और बिल्कुल 2020 के अंत के करीब हम आ गए हैं। The rest of the day, spend time in the presence of the Lord and prepare our lives to enter into the new year. Hallelujah. और बाकी के जो दिन है उसमें आप परमेश्वर की करीबी में उसकी उपस्थिति में समय बिताएं और अपने आप को तैयार करें 2021 में प्रवेश करने के लिए। Don't enter into the new year with the old baggages. और पुराने सामान को लेके आप 2021 में प्रवेश ना करें। Let all the baggages that not belongs to the promised land, leave it behind and enter into the promised land. और वो Hallelujah. पुराने जितने भी आपके बैग है, जो सामान है, जो नए उस वायदे के स्थान के लिए नहीं है, उसको आप पीछे छोड़ दें और उसके बाद 2021 में आप प्रवेश करें। Hallelujah. Trust in the Lord. हालेलुया। Prepare परमेश्वर पे भरोसा yourself लगाएं, अपने and आप को spend तैयार time in the करें presence of the Lord. और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं And God is with us. और परमेश्वर हमारे साथ है। He is Emmanuel. वो इम्मानुएल है। We love you all आप सभी से प्रेम करते हैं हम and we miss you all. May God bless you all. और प्रभु आप सभी को आशीष दे। And there is an announcement on 31st और night. 31 की रात में We will have watch night prayer in Zoom. और जूम पे हमारी वॉच नाइट प्रार्थना होगी। And I request all the people, all the believers, all the people in the church, we should come together in the Zoom and we will spend time together and we will enter into the new year with thanksgiving. और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी विश्वासी हैं सभी लोग हम लोग सब मिलके जूम पे उस रात में आए और एक साथ प्रार्थना करते हुए हम लोग नए साल में प्रवेश करें। Be prepared and I will let you know the timing. और आप तैयार रहें, मैं आपको समय बता दूंगा। 11 p.m. we will start our meeting. और 11 बजे हम लोग अपनी उस प्रार्थना को शुरू करेंगे। 11 p.m. रात में 11 बजे 31st night, 11 p.m. we will have our Zoom meeting. 31 दिसंबर की रात 11 बजे अपनी जूम मीटिंग को हम शुरू करेंगे। Okay, we will have a watch night prayer. हमारी प्रार्थना होगी रात की। God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष दे। And let's close our eyes and let's receive the benediction. और आइए आंखों को बंद करके आशीषित वचन को हम लोग प्राप्त करें। Father, I bless your people in the name of Father, Son and Holy Spirit. पिता मैं आपके लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देता हूँ। Thank you, Lord, for your presence in our life.
आपकी उपस्थिति जो हमारे जीवन में है उसके लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for guiding us and leading us. हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। And be with us, Lord, हमारे साथ रहिए परमेश्वर, Lord, and guide us continuously. और निरंतर हमारा मार्गदर्शन करिए। Thank you, Lord, for covering and protecting us. हम सबको ढांकने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए आपका Thank you, धन्यवाद। Lord, for your healings, आपकी चंगाइयों के लिए धन्यवाद, for all your blessings in our life, Lord. और हमारे जीवन में आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। Wherever we are, Lord, you prepare us for your coming. Hallelujah. और जहां पे भी हम हो, हमें आप अपने आगमन के लिए तैयार करिए। Prepare the church, Lord, कलीसिया को तैयार करिए and prepare each one of us, Lord. और हम सबको तैयार करिए। And be with us in this week. और इस हफ्ते हमारे साथ बने रहिए। Until we meet again, cover each one of us under your blood. और जब तक हम दोबारा ना मिले, हम सभी को अपने लहू में ढाक के रखिए। In Jesus' most precious name we pray. यीशु के Amen. सामर्थ्य नाम Amen. से मांगते हैं, आमीन आमीन। Let's receive the benediction. May the grace of the Lord and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever and ever, and help us not to remain in the past, but enter into the promised land with the hope, with the great faith, and with a great anointing, and help us to remain faithful and remain holy until the Lord comes, and the church may say, Amen, Amen, Amen. May God bless you all. Have a blessed week. प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हम आशा करते हैं कि आज की सभा से आप और आपका परिवार आशीषित हुए हैं। वी बिलीव दैट टुडेज सर्विस वाज अ ब्लेसिंग टू यू एंड योर फैमिली। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वी आर प्रेइंग फॉर यू। फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर हमारी ऑनलाइन सर्विस में जुड़े, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। Join us in our online services at our Facebook page and YouTube channel. Do subscribe and share it with your friends. स्क्रीन पर दिए गए संपर्क विवरण पर अपनी गवाही एवं प्रार्थना निवेदन हमारे साथ बांटें। Please share your testimony and prayer requests by reaching us through the contact details displayed on the screen. परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाला सप्ताह आपके लिए आशीषित हो। God bless you and have a blessed week